Okay, so good morning everyone. So yesterday we have started discussing about the analysis of steel frame building. Okay, so the model was completed up to assigning the loads, or I think so deck slab tak hua tha shayad. Okay, just don't worry, I will just revise those things. Okay, I will take one simple model again. I will again follow those similar steps which we have done yesterday. Okay, and after that we will move towards load combinations, then analysis part, deformation part, design check. Okay, then we will then finally complete the lecture on our analysis of steel frame building. Okay, but just remember when we have to use those commands. Okay, ये ध्यान में रखना. या रिकॉर्डिंग में लेक्चर में कर रहा हो तो उसे प्लीज आप देखिए या फिर नोटबुक में लिखिए कि जो कमांड हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग सिलेक्ट या फिर देन असाइन या देन एनालाइज होता है, डिजाइन होता है, उसमें कौन कौन से कमांड हमने कब यूज किए, क्यों यूज किए. जस्ट सी दैट what is the application of that command. Okay, so I will just share the content with you of that etab window. Okay, just one of you please tell me, can you see the etab window on your screen? Yes, sir. Okay, so I will just again revise what we have done yesterday because एक लड़के ने पूछा था about that auto select, and as well as one was asking yesterday regarding how to that about step of doing having that fixed support at the base. Okay, so kindly वो जो लड़के ने कल पूछा डाउट वो भी देख ली इसमें कि उसमें हमने क्या किया था कल yesterday. So click on this new model. Okay, then use built-in settings with. Okay, display units will be metric SI, steel section database will be Indian, steel design code will be IS 800, concrete design code will be IS 456. Okay, now click on OK, and again this new model quick template will be displayed in your screen, on the screen. Okay, now number of green lines will be, suppose I will just take here 3, स्पेसिंग यहाँ पे मैं 80 रखता हूँ, स्टोरेज में कम कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज 3 कर देता हूँ, टिपिकल स्टोरेज एट 3 मीटर 3 मीटर. Okay, and all that object structural objects will be grid only. Okay, and click on OK. Just wait, that window will load. Okay, so now you can see there are 2 windows in front of your screen. In first window you can see plan view, and then second window is having 3-dimensional view. Okay, so I will now just save the file. Okay, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टील डिजाइन, सपोज 16 September 21. Okay, then save it. By clicking on this pan you can move this plan like this, so you can easily see the total view of that structure or that plan. Okay, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन यूनिट्स. देन कंसिस्ट यूनिट हमें बनाना है कि पूरे स्ट्रक्चर में हमें कांस्टेंट यूनिटी रखने ऑफ दैट लेंथ एज वेल एज ऑफ फोर्स यूनिट. ओके, then click on all stories, because whatever we are defining, the material as well as the frame section, deck sections, that will be applied throughout the stories. Okay, right, now you have to click on now next define, then go on material properties, add new material, क्लिक अवर रीजन इंडियन, स्टील हमें अभी सिलेक्शन करना है. सो यहाँ पे आपके सामने FE250 है और FE345 है. सो क्लिक ऑन FE345, click on OK. The material properties of that FE345 will be displayed in front of you. Then click on OK. Then again add new material. If I have to define concrete, यहाँ पे आपके सामने concrete grade आ जाएंगे. So just for a while click on M35 or M40. Click on OK. Then again that material property will be displayed, physical property of that M40. Then again click on add new material, click on now rebar, then HYSD suppose grade 500 I will take here, then click on OK.
And suppose any other material remaining, steel, concrete, aluminium, ठीक है, इतना है बस अभी काफी. So click on Fe35 is there, M40 is there, HYSD 500 is there, and then click on OK. Fine. Now again click on define. Now we want to define section properties. Now click on frame sections. ये step important है, so please जिसने कल डाउट पूछा तो वो भी ध्यान से देखिए. Click on frame sections. Okay. Now as we have to design steel frame building, so we have to import the properties which are defined by the ETAP for the steel structure, and those sections are IS, LB, HB, JB, MB, WB. So we have to import those sections. So you click on import new properties, right? So section shape, let it be concrete rectangular, but click on steel. Okay, we have to click on steel section, right? So आपके सामने यहाँ पे नेम ऑफ XML प्रॉपर्टी फाइल आएगा इंडियन, डिस्क्रिप्शन आइटम आएगा इंडियन, default material for section. So what material you have to define for that beam, for that column, for that any secondary beam, that will be Fe345. Okay, and our section shape will be steel I oblique wide flange. Okay, then select all those sections like this, shift दबाइए. ओके, और डाउन वाला आपके पास एरो होगा, उसको दबाइए वहां पे दोनों एक साथ, and click on OK. So all those sections which were selected by you will be displayed in this find this property. Okay, again ये टेबल ऐसा ही रखना. then click on add new property. ओके, अभी add new property करने के बाद section shape आएगा, steel I wide flange आएगा. Can anyone tell me what is the next step after doing this, selecting all the sections? What was the next step yesterday we have done? Auto select list. Yes, correct. So we have to click on auto select list. Okay. So what happen? Auto select will be for our that auto beam. And I have told you ki while doing analysis of that steel frame building, keep in mind that auto select has the best application in ETAP, that it gives us an economical section. Okay, while analyzing as well as for designing. आप ये देखोगे जब आप एनालिसिस करोगे ना, स्टार्ट एनालिसिस और रन करोगे या फिर डिजाइन करोगे, ऑन दैट नोट यू विल फाइंड कि हमने तो 6 बीम सिलेक्ट किए होते ऑटो बीम के लिए, उसमें से एनालिसिस एंड डिजाइन करके ETAP हमें ऑटो लिस्ट में से एक ही बीम दे देता है. Means they are saying कि we have work on that beam and this beam is suitable for your problem. Okay, just आप ये ध्यान में रखिए. Auto select type will be steel. Then आपको यहाँ पे for example if I have to design that beam, so I will prefer IS WB to IS suppose 500. Okay, यहाँ पे मैं 5 बीम ले लेता हूँ. इसे मैंने यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट कर लिया है. ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे ऑटो बीम आ गया है ना. सो ऑटो बीम में आप क्या करना कि उसे सिलेक्शन करके देखिए कि आपने जो बीम सिलेक्ट किए है ना वो ऑटो बीम में दिखा रहा है. ओके, मतलब आपने बराबर काम किया है, राइट. सो अगेन ऐड न्यू प्रॉपर्टी, ऑटो सिलेक्ट वैसे ही रहेगा. अगेन ऑटो सिलेक्ट लिस्ट, वी हैव टू वर्क ऑन ऑटो कॉलम. ओके, ये कॉलम हमें बनाना है, राइट. तो कॉलम को अभी मुझे अगर सेक्शन देना हो फॉर जस्ट एग्जांपल पर्पस, आई विल गिव ISMB 350 to 550. ओके, फिर से मैंने यहाँ पे 5 ही ले लिए, ये 5 यहाँ पे आ गए. देन ऑटो कॉलम हमारा डिफाइन हो गया, ऑटो बीम हो गया, ऑटो कॉलम हो गया. सिमिलरली ऐड न्यू प्रॉपर्टी करिए फिर से. ओके, देन ऑटो सिलेक्ट में जाइए. ओके, बिकॉज वी वांट टू डिफाइन सेकेंडरी बीम्स नाउ और कॉम्पोजिट सेक्शंस. ओके, सो यहाँ पे उसे प्रॉपर्टी का नाम दीजिए ऑटो सपोज सेकेंडरी या फिर ऑटो कॉम्पोजिट सेकेंडरी. ओके, देन सेकेंडरी बीम थोड़ा उसका मैं डेप्थ या साइज कम ही रखता हूँ, सपोज 150 to 300. ओके, एंड लिसन, इट इज नॉट दैट थंब रूल कि मैं जैसे सेक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे होता है. ओके, इट इज अकॉर्डिंग टू योर दैट डिजाइन रिक्वायरमेंट.
what dimensions you are having, what kind of structure you are constructing, what any designer have told to you कि आप इस section में से ही ये beam selection कीजिए. ओके, सपोज आपका HD1 हुआ होगा तो आपने वहाँ पे क्या कहते हैं टेंशन मेंबर होगा डिजाइन किया होगा या कॉम्प्रेशन डिजाइन किया होगा. There is a one more problem related to that DSS wherever you analyze कि for that suppose given factor load or design tensile strength load or compressive strength what we obtain that TD, you have to select one section. एक वो प्रॉपर सेक्शन आपको लेना होता है. बट रिमेंबर एक लड़के का सेक्शन अलग होता है और दूसरे का सेक्शन अलग होता है. ओके, हर वक्त वो एरिया से हम सेक्शन सिलेक्शन करते हैं. ऐसा थंब रूल इसमें है कि हम 10 से 15% ज़्यादा वाला एरिया लेंगे. सो सेक्शन ऐसे होते हैं उसका एरिया लगभग एक सेम ही होता है किसी का, या फिर थोड़ा एक का +100 रहता है -100 रहता है. बट ये तो सही होता है कि वो डिज़ाइन जो हमने किया है वो सेक्शन उसे ले पाएगा. ओके, सो ऐसे आपने यहाँ पे किया है कि जो भी आपने ऑटो सिलेक्ट किए उनमें से एक सूटेबल सेक्शन ईटैब्स सॉफ्टवेयर ले लेगा, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा. ओके, देन ऑल दैट रिजल्ट्स यू विल शो सीन एट द लास्ट मोमेंट. ओके, सो ऑटो बीम हो गया, ऑटो कॉलम हो गया, ऑटो कॉम्पोजिट हो गया. सो नाउ क्लिक ऑन ओके. नाउ can anyone tell me what was the next step, what we have defined after defining this auto beam, auto column and then secondary beam? Which was the next step? Yes, reply fast. Which was the next step? Slab. Yes. स्टील फ्रेम में हमने बीम बना लिया, कॉलम बना लिया, सेकेंडरी बीम बना लिया, शेयर वॉल. अच्छा, अरे वो शेयर वॉल का हमने कल डिस्कस किया ही नहीं. अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए डिफाइन में जाके सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके आपने कल कौन सा स्टेप देखा था? Deck slab. Yes, we have seen to define that deck slab. Okay, so again I will request, you are not able to, all of you are not giving answer immediately. Okay, so please kindly see all the recording, practice bhi kijiye, then only you will get clear. Okay, and then click on deck sections, because जैसे कि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं या फिर हम जो स्टील डिजाइन कर रहे हैं तो हमें उससे में डेक ही लगेगा. ओके, सो यहाँ पे डेक सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, देन उससे हमें मॉडिफाई करना है. अभी आप इधर मॉडिफाई सॉरी ऐड भी कर सकते हो फिर मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, आई विल जस्ट क्लिक ऑन मॉडिफाई बिकॉज मेरे पास हम वहाँ से पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अवेलेबल होते हैं. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे पहले से प्रॉपर्टी अवेलेबल है. सो उसे मैं नाम देते तो मैंने कल एक नाम दिया था सपोज डेक 80. ओके, slab material will be M40, deck material will be FE345. ओके, देन उसका कलर रहेगा या प्रॉपर्टी नोट्स. ओके, आप यहाँ पे सपोज उसे डायमेंशन देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, सपोज 0.08. यहाँ पे स्लैब डेप्थ लिखा है ना. एंड इफ यू हैव डिजाइन और इफ यू हैव द डायमेंशन ऑफ द डेक स्लैब you can change this. Okay, rib width, top bottom spacing, deck shear thickness, unit weight ये आप चेंज कर सकते हो. ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आते हैं, बट इफ यू हैव अनदर वैल्यूज विथ यू, ओके, यू कैन चेंज हियर. नाउ क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे डेक 80 आ गया, देन क्लिक ऑन ओके. सो आफ्टरवर्ड्स आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्विक ड्रॉ बीम्स कॉलम्स. ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा. ओके, टाइप ऑफ प्लान आपका फ्रेम ही रहेगा. प्रॉपर्टी आपका रहेगा अभी जैसे कि आप बीम डिफाइन कर रहे हो, सो यू टू क्लिक ऑन ऑटो बीम. ओके, सो आप फिर यहाँ पे एरो आ गया. सो आप यहाँ से कॉर्नर से एरो पकड़ के उसे इस कॉर्नर तक लाना. ओके, सो ये हो गया आपका beam define. Then click on quick draw columns.
ओके, देन प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे जो कॉलम की आपने बनाई है वो आपको सिलेक्शन करना है, ऑटो कॉलम। अगेन यहाँ पे एरो रखिए और यहाँ से उसे वो आप लेफ्ट वाला माउस पे आप दबा के रखिए और यहाँ से उसे रिलीज कर दीजिए। ओके, देन नाउ सिलेक्शन में या ऑब्जेक्ट पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए। इसके बाद इफ सपोज एज अ डिजाइन रिक्वायरमेंट I have to change the axis of this columns. Okay, I will go in assign, I will go in frame, then I will click on local axis, then I will click on orient with the grid system. Okay, and I have to assign those columns which should be in the direction of y axis. So frame object major direction is y, so click on apply, then okay, right? Now again secondary beam हमारा बाकी है। सेकेंडरी बीम को प्रॉपर्टी हम वहाँ पे जाएंगे बिकॉज वी हैव डिफाइन समथिंग रिलेटेड टू ऑटो composite. Okay, so number of beams in this one section you can see here there are 3. So click here, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे, और either you can also do like this, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, then use 2-point that slab or floor wall or plan. Okay, so click on this 2-point, that is draw rectangular floor wall। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेकेटी, उस पर क्लिक कीजिए, देन इस एरो पे जाइए। ओके, अभी आप स्लैब बंद हो रहा, आप बाहर से नहीं, बाहर से आप क्लिक मत करिए। ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये क्रॉस पे, सो इसे यहाँ से खींचिए, देन जब यहाँ पे आ जाएगा देन यहाँ से छोड़ दीजिए। ओके, इफ सपोज आपको एक्सटेंशन फॉर्म में देखना है कि वो दिखता कैसा है, सो क्लिक ऑन एक्सक्लूड फ्रेम्स एंड एज वेल एज एक्सक्लूड शेल्स। ओके, देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। ओके, सो आप इस तरह देख सकते हो। So you can see in this way you can see your extended version of that steel frame building. It will be like this. Okay, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, नाउ आई थिंक सर हमारा ये स्टेप तक हो गया था, राइट? ओके, ये और एक स्टेप बाकी था। सो आप इसमें जाना, अभी जो बेस है हमारा वहाँ पे भी डेक स्लैब मतलब क्या डिफाइन हो गया है, बट आई डोंट वांट द डेक स्लैब शुड बी एट द बेस, वो रहता है नहीं, हमें सिर्फ वहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाना है। सो पहले क्या करना, 0 पे गया मैं, z इज इक्वल टू 0 पे गया, सिलेक्शन किया, देन यहाँ पे जाना और 1 स्टोरीज करना, बिकॉज वॉट एवर यू आर डिलीटिंग ओनली फॉर दैट 1 स्टोरी, ओनली फॉर दैट बेस। ओके, सो क्लिक ऑन डिलीट। राइट, सो आपने क्या किया कि बेस पे जाके आपने डिलीट कर दिया। ओके, सो आप इसे पूरा सिलेक्ट करिए पहले, बिकॉज आपको यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाना है, देन असाइन, then joints, then restraint. Okay, then click on this fix support, click on apply, then okay, right? So आप इस एरो से देख सकते हो कि 3 मीटर पे हमारा डेक बीम कॉलम सेकेंडरी बीम सब है, 6 pb है, 9 pb है। ओके, सो हमने बेस पे फिक्स सपोर्ट लगा लिया है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 9 तक आ जाएंगे और अगले से हम ऑल स्टोरीज पे जाएंगे अभी। ओके, तो शायद आई थिंक सो ये स्टेप तक हमारा हो गया था। ओके, नाउ वी टू डिफाइन आवर लोड पैटर्न्स। ओके, अभी हमें लोड पैटर्न डिफाइन करने हैं, राइट? ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से आप साइमल्टेनियसली अपने ईटैप के भी जो आप लैपटॉप में कर रहे हो प्रैक्टिस, उसमें भी करिए।
So again I will tell, next step is to define the load patterns. So click on load patterns here. Okay, so as I told you कि it will give you that default setting will be having with dead load and live load. Okay, so आपको यहाँ पे ऐड करने हैं अभी loads. Okay, so मैं यहाँ पे ऐड करूँगा अभी एक नया load. I just want to hear answer from your side. Have you ever heard the word super dead load? Or anyone knows the meaning of super dead load? What is the meaning of super dead load? Yes. Yes, reply fast. What is the meaning of super dead load? What is the meaning of dead load? डेड लोड मतलब फिक्स होता है इसको लोड, मूवेबल नहीं होता, चेंज नाही होता. ओके, ठीक आहे. मग सुपर डेड लोड म्हणजे काय असेल? मग मला एक सांग, जर मला पार्टिशन वॉल बांधायची असेल एखाद्या फ्रेम मध्ये, तर ती डेड लोड मध्ये जाईल का सुपर डेड लोड मध्ये जाईल? खूप सिंपल क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला. पार्टिशन वॉल जर आपण आपल्या फ्रेम बिल्डिंग मध्ये बांधली, सुपर डेड लोड मध्ये जाईल सर. येस करेक्ट, सुपर डेड लोड मध्ये जाईल. बिकॉज की आपण स्ट्रक्चर मध्ये डेड लोड कशाला म्हणतो की जे कायमचे परमनंट असतात. पण पार्टिशन वॉल अशी आपण ती बांधतो, ती स्ट्रक्चरवर असते, ती कायम स्वरूपी असते, पण आपण त्याला मूव्ह पण करू शकतो, पण ती स्ट्रक्चर मध्ये असते नेहमी. सो सुपर डेड लोड नथिंग बट एक्सक्लूडिंग सम डेड लोड. ओके, सेल्फ वेट या फिर डेड लोड को एक्सक्लूड करके जो वेट मिलेगा हमें स्ट्रक्चर में, दैट विल बी आवर सुपर डेड लोड. ओके, नाउ अगेन as we are discussing regarding steel frame building, super dead load हो गया. next load pattern will be, मतलब ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि which load pattern you can add. okay, so as I have seen कि स्टील फ्रेम में मैक्सिमम शुरुआत इन्हीं लोड से करते हैं हमेशा. ओके, तो इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि ये लोड आप ध्यान में रखिए. why we are including that, which are दो types of super dead loads. Next I have I am adding cladding. Okay, that cladding will be again super dead load. Okay, now again I want answer from your side. Have you ever heard the word cladding, or do you know what is mean by cladding? मैं EQX आपको पता है, इसे मैं पहले करके देता हूँ. Till then you please give answer regarding what is the meaning of cladding. Yes, cladding मतलब क्या होता है? वो वॉल के ऊपर सर फिनिशिंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं. Yes, very good. एक So, लेयर cladding, वगैरे. हा बरोबर बरोबर. क्लॅडिंग म्हणजे आपण तुमच्या मित्रांचे आन्सर दिले ते अगदी बरोबर आहे. आपण स्टीलच्या बिल्डिंग मध्ये किंवा वॉल वरती एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग वगैरे प्रोव्हाइड करतो ना, त्याला आपण क्लॅडिंग म्हणतो. त्याचंही काहीतरी वजन असतं, त्याचाही काहीतरी लोड असतो स्ट्रक्चरला, सो आपण त्याला नाव दिलंय क्लॅडिंग. ओके, तोही सुपर डेड लोड मध्ये येतो. ओके, then after that cladding we have defined. So I am now discussing, I have assigned EQX EQY. Now I'm assigning WX, that will be having type wind. उसमें हम IS को डिफाइन करेंगे, इंडियन IS 875. ओके, ऐड न्यू लोड अगेन, यहाँ पे मैं WY करूँगा, then add new load. So in this way we have defined load patterns. Okay, so again जो हमने RCC बिल्डिंग में किया था, we have to modify again earthquake load. Okay, so earthquake load पे आप क्लिक कीजिए, modify lateral load कीजिए, right? Then सिर्फ x डायरेक्शन का ही आपको टिक करके रखना है, बाकी आप सबको सब वो अनटिक करने हैं. Okay, then again I have mentioned during that lecture while we were discussing regarding EQX, how to modify it. These parameters are depend upon your requirement. Okay, so I will just keep all these parameters as it is because हमारे पास
एग्जैक्ट इसके वैल्यूज नहीं है। ओके, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज आई एम सेइंग कि ये आप अपने डिजाइन रिक्वायरमेंट में देख सकते हो बाद में जब आपके पास कोई होगा। इफ मुझे कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आपको मैं सब इससे मॉडिफिकेशन बता के दे देता हूँ। ओके, ओके क्लिक कर देना। अगेन सेम स्टेप्स फॉर EQY, फिर अगेन क्लिक ऑन ओके। विंड लोड में जाके हमें एंगल चेंज करना होगा, वहाँ पे मॉडिफाई शो में जाइए, क्लिक ऑन ओके। Click on OK. So in this way we have modified as well as defined load patterns. Okay, then again click on OK, right? So now next step is regarding to assign shell loads as well as frame loads. Okay, so अब अभी क्या करना, जो हमारा shell load था वो कैसे assign करते हैं वो देखेंगे। So click on assign, okay, and click on shell loads. Okay, click on shell loads, then click on uniform. Okay, so first of all what we'll do, I will just discuss regarding that live load. Okay, so हम live load के बारे में discuss करेंगे यहाँ पे। Okay, so अभी जो हमारा live load है, मैंने क्या किया, यहाँ पे live load पे क्लिक किया। Okay, आफ्टर दैट इस विंडो को मैंने यहाँ पे थोड़ा ले लिया और साइमल्टेनियसली मैंने सिर्फ डेक या जो हमारा फ्लोर था मैंने सिर्फ उसको ही सिलेक्ट किया है। ओके, मैंने सिर्फ उसको सिलेक्शन किया है। इफ सपोज दैट लाइव लोड इज मेंशन टू मी इज हैविंग वैल्यू 2 kilonewton. Okay, so I will click on add to existing. Okay, then I will click on apply. In 3D also you can see कि मैंने सिर्फ वो डेक पे ही क्लिक किया है, जो मैंने फ्लोर बांधा है ना उस पे मैंने क्लिक किया है। ओके, सो क्लिक ऑन अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ओके, उसके बाद अप्लाई हो चुका है। ओके, उसके बाद सुपर डेट पे, इफ सपोज दैट सुपर डेट लोड is given to me from that IS code is having value 1. okay, again मुझे 1 add to existing अप्लाई करने से पहले फिर से मुझे फ्लोर पे क्लिक करना होगा। राइट, मैंने फ्लोर पे क्लिक किया एंड साइमल्टेनियसली प्लीज केयरफुली ऑब्जर्व कि ये यहाँ पे ऑल स्टोरेज पे लग रहा है या नहीं। ओके, सो मैंने ये फ्लोर पे क्लिक किया है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, वी हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, देन ओके, राइट। So in this way the shell loads are assigned for that live load as well as super dead load. Okay, so for example if suppose अभी हमें फ्रेम लोड पे काम करना है, so we have to click on assign, then frame loads. Okay, now that frame load will be having pattern or that load will be distributed. Okay, that load is nothing having any dealing with point or temperature or open structure. That load will be distributed in the form of uniformly distributed load. So we have to click on distributed. Okay, आप यहाँ पे distributed पे click करना, right now. So load pattern name, so हम dead load इस पे क्लिक करके देखेंगे कि हमें क्लैडिंग में डिफाइन करना है। ओके, सो हम क्लैडिंग पे डिफाइन करेंगे। ओके, सो क्लिक ऑन दिस क्लैडिंग। ओके, सो आपने क्लैडिंग पे क्लिक किया, नाउ क्लिक ऑन एड टू एग्जिस्टिंग। suppose that cladding is calculated. Cladding is nothing but, listen now, cladding nothing but whichever I'm load is I'm applying of that clad will be applied on the floor or it will be applied on the frame. Can anyone answer me this question? Whatever I am here calculating the cladding load which is having value suppose 5. Okay, 5 kilonewton per meter उसका load है, that load of that cladding we will be applied on the that shell load या फिर deck or only on the frame. Just answer fast.
जो भी मैं यहाँ पे क्लैडिंग लोड निकाल रहा हूँ 5 किलो न्यूटन का, वो डेक पे अप्लाई होगा या फिर वो फ्रेम पे अप्लाई होगा? फ्रेम पे होगा। यस, सो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली काम करना होगा आपको। जैसे आपने यहाँ पे लोड पैटर्न नेम क्लैडिंग दिया है, उसका आपने सपोज आपको वैल्यू दिया होगा दैट क्लैडिंग इज हैविंग वैल्यू सपोज लोड इंटेंसिटी ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सो आपको क्या करना होगा, आपको फ्रेम सिलेक्शन करना होगा और वो ध्यान से करना। ओके, सो क्लिक ऑन दिस लाइन केयरफुली सी, मैं सिर्फ आउटसाइड के फ्रेम पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, सेकेंडरी बिन पे मैं कुछ उसे हाथ नहीं लगा रहा। ओके, because as you have given me answer that was frame, and that frame includes our auto beam. Okay, so that outside में हम क्लैडिंग कर रहे हैं ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग हम बाहर से कर रहे हैं, और सिर्फ बाहर पे ही होगा ना फिर। ओके, सो देन क्लिक ऑन अप्लाई, देन ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 ये लोड इंटेंसिटी यहाँ पे अप्लाई हो गया है फॉर ऑल स्टोरीज। ओके, देन क्लिक ऑन डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस। So I will again revise क्या हमने अब तक क्या किया। So first of all we assign again regarding load patterns. Okay, हमने उसमें dead load, sorry super dead load, cladding, EQX, WX हमने assign किया, add किया उसमें। Then हमने shell loads and frame load हमने देखा उसमें कि कैसे assign किया जाता है, क्या क्या values रहते हैं उसमें। Okay, then now we will see how to define that load combinations. Okay, so click on load combinations. So first of all click on define, then click on load combinations, right? So यहाँ पे आपके सामने कोई add new combo नहीं, so you have to again click on add default design combos. Okay, click on add default design combos. Okay, so accordingly यहाँ पे क्या होगा कि आपके सामने आ जाएंगे 5 लिस्ट हो गया आपके सामने। Okay, so you have to tell me what should I select from this 5 list? कहाँ पे मुझे टिक करना चाहिए यहाँ पे इस इन लिस्ट में से? I will just read for you if you are not able to see. First one is steel frame, second one is composite beam design, then concrete frame design, then concrete shear wall design, and then concrete slab design. Steel frame Concrete design. frame. Okay, steel frame is right answer. और एक कौन सा होगा इसमें से? One answer is correct, that is steel frame design. But if you remember, while we are defining frame sections, उस पे हमने ऑटो बीम ऑटो कॉलम के बाद तीसरा स्टेप हमने कौन सा किया था? Composite. यस, सो आपको क्लिक करना है composite beam पे। Okay, so our load combinations will be for the steel frame building with the this design type for load combination will be regarding steel frame and composite beam. So click on OK. So you can see यहाँ पे शायद 30 तक आपके सामने यहाँ पे combinations डिस्प्ले हो गए इन लिस्ट्स में। ओके, सो क्लिक ऑन ओके, राइट। देन आफ्टर दैट अभी मुझे इसमें अभी क्या करना है, एनालिसिस करना है। ओके, सो एनालिसिस करने से पहले आपको रन करना पड़ेगा। ओके, सो आप यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। ओके, उससे पहले एक काम कर ले, चेक कर लेते मॉडल बराबर है नहीं। सो यू कैन चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो, चेक मॉडल पे क्लिक करना। ओके, चेक मॉडल, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सभी के लिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि बराबर है नहीं मॉडल, कुछ अगर उसमें गलती हो गई देख लेते। सो यहाँ पे मुझे मैसेज आया है कि मॉडल हैज़ बीन चेक, नो वार्निंग मैसेज वेर जनरेटेड। ओके, सो इसे मैं कट कर देता हूँ। अगेन एनालाइज में जाके आप यहाँ पे रन एनालिसिस कर देना। मैंने रन एनालिसिस एनालिसिस में जाके भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ओके,
रन करने के बाद आपका मॉडल ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे अनलॉक और लॉक का भी है। लॉक मतलब क्या, उसके बाद आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ओके, देन एज यू कैन सी कि हमने रन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ। व्हाई आई एम सेइंग डिस्प्ले, बिकॉज फ्रॉम दिस डिस्प्ले विंडो and from the deform shape they have automatically given us first deform view for dead load. Okay, so you can see here, आप यहाँ पे देख सकते हो 3D व्यू में लिखा है ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेड। तो आप इस पे हम देख पाते हैं कि एनिमेशन करते हैं इसमें, देखिए कुछ इस तरह से उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ओके, डिफॉर्मेशन होता है यहाँ पे फॉर डेड लोड कॉम्बिनेशंस। इफ सपोज you have to check for again another load, suppose I'm checking for EQX, उसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। ओके, एंड देन लेट मी सी यहाँ पे क्या होता है। सी EQX earthquake load in the lateral direction of x direction is applied on this structure, so it will be moving in this x direction. Okay, so you can see here like this it will move. सपोज उसे मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ऐसा, it will move in EQY. ओके, सो कुछ इस तरह से आप डिस्प्ले में जाके ओके डिफॉर्म शेप दे पाओगे। एंड दैट शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखी F6 से यहाँ पे। ओके, देन अभी ये हो गया हमारा डिस्प्ले में जाके डिफॉर्म शेप देखना। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर आफ्टर एनालाइजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर द डिफॉर्म शेप फॉर वेरियस असाइन लोड पैटर्न्स। ओके, ये चेक करके लेना पहले। देन उसके बाद आपको देखना था डिस्प्ले में जाके कि फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम। ओके, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे फ्रेम पियर स्पैंडल लिंक फोर्सेस। ऑल्सो यू कैन शॉर्टकट की आपके सामने होगी F8। ओके, नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आप ये आपके ये अच्छा होगा कि आप शॉर्टकट भी समझ पाओगे ना। ओके, सो क्लिक ऑन डिस्प्ले फोर्स स्ट्रेस डायग्राम एंड देन F8। ओके, सो मैं यहाँ पे F8 पे या फिर फ्रेम पे क्लिक कर देता हूँ। सो आपके सामने यहाँ पे okay, now in front of you can see plan and 3D view is given. Okay, in 3D view if you have to see what are the axial forces which are acting, so it will be like this. Okay, bottom पे ज़्यादा है, then first second third पे, मतलब जैसे जैसे लोड हमारा बढ़ रहा था या फिर कम हो रहा था वैसे वैसे एक्सियल फोर्स भी हमारा बॉटम से लेके टॉप तक कम हो गया। ओके, ऑल्सो यू कैन सी शेयर फोर्स। ओके, शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे रहेगी वहाँ पे। ओके, बेंडिंग मोमेंट आपकी अगर देखनी हो इस तरह से होगी वहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए। ओके, सो इन दिस डिस्प्ले there are two important icons for us, deform shape as well as force stress diagram. Okay, so यहाँ पे आपको इन दोनों पे हमेशा ध्यान देना होगा। आफ्टर एनालिसिस यू शुड फर्स्ट गो फॉर डिफॉर्म और फोर्स और फोर्स एंड देन डिफॉर्म। ओके, यहाँ पे डिपेंडिंग। ओके, then click on close. Okay, so now our next step is regarding the design section. Okay, हमने अभी एनालिसिस पूरा कर लिया because analysis was involving was involved regarding some torsion and then shear force, axial force, moment, right, as well as analysis was involving deformed shape. Okay, उसमें हमने deformed shape देखा, एनिमेशन पार्ट देखा। सो ये आप ध्यान में रखिए कि एनालिसिस पार्ट में हम इतना ही सेक्शन देख सकते हैं। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन डिज़ाइन। ओके, सो डिज़ाइन में आप क्लिक करके जैसे कि
आपने डिफाइन किया था ना, लोड कॉम्बिनेशंस आर फॉर स्टील फ्रेम एंड कंपोजिट बीम। सो आप सिर्फ ये पहले वाले पे और ये तीसरे वाले पे काम करोगे। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंपोजिट बीम डिजाइन। ओके, सो कभी भी डिजाइन आप शुरू करोगे और इनमें से कौन सा सेक्शन लोगे तो आप क्या पाओगे कि स्टील फ्रेम में देखिए पहले क्या वर्ड आया, व्यू रिवाइज, इसमें क्या आएगा, व्यू रिवाइज, इसमें क्या आया, व्यू रिवाइज, इसमें क्या आया, व्यू रिवाइज। सो यहाँ से आपको एक क्लियर होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू व्यू और रिवाइज योर प्रेफरेंसेस, whatever you are given preference from IS 800 to 456. Okay, but you should again check. Okay, so again click on view revise preferences. Okay, so यहाँ पे concrete beam design preferences for IS AISC 36016 यहाँ पे दिया है। एंड हमारे IS कोड में या फिर हमारे प्रोविजन में अभी तक कॉम्पोजिट बीम का IS कोड नहीं है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट और जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस हमें यहाँ पे डिज़ाइन कोड हमें यही वाला यूज़ करना होगा, AISC 36016। इफ़ यू कैन चेक हियर, डिज़ाइन कोड्स आर ओनली अवेलेबल, ये शायद अमेरिकन होगा, ये शायद कनाडा या फिर चाइना का होगा, फिर ये यूरोप का होगा। ओके, but only composite beams design code was designed or are provided only for by these 4 countries. Okay, so just click on AISC 36016. Okay, then click on OK, right? Again check click on design. Okay, so हमें व्यू हमने रेफर या फिर प्रेफरेंस हमने दे दिया है। then click on composite beam design again। हमारे सेक्शन पहले हो गया है ना, राइट? अभी हमें क्या करना है इसमें कि हमें अभी डिज़ाइन शुरू करना है। ओके, सो डिज़ाइन कंपोजिट बीम डिज़ाइन एंड नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट डिज़ाइन ऑब्लिक चेक, और आप उसे दबा सकते हो शिफ्ट प्लस F7। ओके, आप लैपटॉप भी शॉर्ट कीज नोट्स में लिख लीजिए। ओके, स्टार्ट डिज़ाइन चेक में आप जाओगे। ओके, सो मैं से यहाँ पे उसे क्लिक कर देता हूँ। सो नाउ केयरफुली सी नाउ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, आई थिंक सो मैं आज तक इतना ही ले लूँगा, बिकॉज आगे का पार्ट भी थोड़ा रिवाइज या फिर चेक का है, मैच का है, बट आई जस्ट वांट योर कमेंट्स। ओके, ये स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे डिज़ाइन किया, कॉन्क्रीट बीम डिज़ाइन मैंने क्लिक किया, देन स्टार्ट डिज़ाइन चेक किया, एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हमने कॉन्क्रीट बीम कॉम्पोजिट बीम में हमने जो डिफाइन किए थे ना मटेरियल, सॉरी जो बीम्स हमने डिफाइन किए थे उसमें IS MB 300 भी था, लेकिन उसके साथ साथ 4 या 5 और थे, इफ़ यू रिमेंबर। ओके, सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे हमें बताया कि आप ये वाला यूज़ कीजिए, IS MB 300, यू कैन सी हियर। ओके, आप देख पाओगे। अरे ध्यान से देखिए कि ये सिर्फ कॉम्पोजिट बीम पे ही लगे हैं, ना ही ये बाहर के बीम पे या फिर कॉलम पे ये नेम्स आए। ये सिर्फ अंदर के हमने 3 डिफाइन किए थे ना, उसी पे ये नेम्स आए हैं। सो ऑटो लिस्ट का फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने हमें ऑटोमेटिकली एक अच्छा वाला सेक्शन उन्होंने हमें दे दिया, विच वॉज IS MB 300। ओके, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ग्रीन इंडिकेट कर रहा है ना, ये ग्रीन वाला सेक्शन ये बता रहे हैं कि ये आप ये प्रेफर कीजिए। ओके, इट इज़ हैविंग बेस्ट वैल्यू फॉर योर डिज़ाइन पर्पस। ओके, जैसे कि हमने सेक्शन लिए थे वैसे हिसाब से यहाँ पे कलर आ जाते हैं। ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ जाते हैं। ओके, सो दे हैव टोल्ड अस कि आप ये वाला IS MB 300 प्रेफर कीजिए। ओके, उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें वेरीफाई करना पड़ता है, यहाँ पे जाके वेरीफाई एनालिसिस वर्सेस डिज़ाइन। ओके, दिस आई विल टेल यू। अभी आप क्लिक करिए नो पे, देन आपको फिर से रन करना पड़ेगा यहाँ पे। राइट, देन रन करने के बाद फिर से डिज़ाइन में जाओगे आप, कंपोजिट बीम, अगेन स्टार्ट डिज़ाइन चेक। ओके, अगेन IS MB 300 आ गया, मतलब एनालिसिस करके IS MB 300 आ गया।
और डिजाइन करके भी ISMB 300 ही आया, उसका ग्रीन कलर था, इसका भी येलो कलर है, राइट। उसे मैं फिर से चेक करके देखता हूँ, कॉम्पोजिट बीम डिजाइन, देन वेरीफाई एनालिसिस वर्सेस डिजाइन। सो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आ गया, एनालिसिस एंड डिजाइन सेक्शन मैच फॉर ऑल कॉम्पोजिट बीम्स। सो यहाँ से ये क्लियर होगा कि the greens were defined by analysis and this yellow sections were defined by design, और वो सेक्शन दोनों मैच हो गए। ओके, ये स्टेप हम फिर से कर लेंगे, बट जस्ट मैंने अभी बता दिया कि कल का स्टेप क्या रहेगा। बट ये आपने आज जो सीखा है उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर इसमें अभी आपको कोई डाउट चल रहा हो तो आप मुझे पूछ लीजिए इसमें। ओके, I will not just stop sharing the content. If anyone is having any doubt regarding this, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द वीडियोज़। ओके, नोट्स भी लिखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कीजिए। ओके, I will now just post the attendance link in the comment section, so you can write your names or college and what the roll number is given in that form. Yes, anyone is having any doubt regarding today's lecture, please kindly they can ask. Yes, Salma, Javed, any doubt is there for today's lecture? No, sir. Rohan, Ade? No, sir. मी सर्वांना रिक्वेस्ट करेल की ई टॅब मध्ये तुम्ही लेक्चर झाल्यावरती परत प्रॅक्टिस करत जा, रेकॉर्डिंग लेक्चर बघत जा आणि नोट्स बनवा। सर्वात महत्त्वाचं सगळ्यात चांगली स्टेप नोट्स बनवल्या तर लक्षात राहील। परत परत पॉसिबल होत नाही व्हिडिओ बघायला, तर नोट्स बनवा, तुम्हाला कळून जाईल की कोणता कमांड कोणत्या टॅबमध्ये त्या टूलचा काय उपयोग आहे। ओके, सो ते प्रॉपरली सगळं फॉलो करा। ओके, आणि काही डाऊट असेल, कुठं काही समजत नसेल तर मला मेसेज करा, मला स्क्रीनशॉट शेअर करा की मला असा मेसेज डिस्प्ले होतोय, ठीक आहे, डिझाईन वगैरे किंवा ॲनालिसिस करताना। ठीक आहे, आय विल नाव जस्ट एंड द सेशन. ओके, थँक्यू सो मच अँड हॅव अ नाईस डे.